जिस तरीके से बैक टू बैक ब्रिजेस राज्य में गिरे हैं और इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। गुणवत्ता से अगर समझौता हो रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। आई एम एन एडवोकेट, आई मीन आई कांट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट। मैं कैसे झुटला सकता हूँ? और मुझे तो गर्व होता है कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ। सीएम चिराग पासवान और यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान, बिहारी चिराग पासवान, दैट्स इट। देश तो भूल जाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर सकती है। ये कोई खैरात नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। और जब आप संविधान पे ही आप सवाल खड़े कर देते कि इसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप तो बाबा साहब पे ही आप उंगली खड़ी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद हिम। थोड़े खट्टे खट्टे भी हैं, मीठे मीठे भी हैं, क्या हुआ था? कोई आपकी माँ बहन को गाली देता है ना, वो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, खून खौलता है आप। बट मेरे और तेजस्वी के बीच में रिश्तों में दूरी तब आई जब रिएक्शन में ही स्टार्टेड कवरिंग अप ओवर द होल इशू, यू नो। ये गलत है, बात खत्म। कंगना, ऑफ कोर्स शी इज वन, यस, बट do you think she can make a difference? One thing I know for sure that most of the time she's not very politically correct, but that's her USP again. That's her USP. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today is Chirag Paswan of the Lok Jan Shakti Party, Ramvilas Paswan, from Bihar. Not long ago, Chirag Paswan had been dismissed as a zero. He wasn't living up to the expectations of his party or his people, not being able to get out of the shadows of his father. But come 2024, he has scripted a success story. Chirag has proved his critics wrong and made even his adversaries sit up and notice his career trajectory. His party won all 5 seats it contested in the 2024 Lok Sabha polls: Hajipur, Jamui, Khagadia, Samastipur and Vaishali. The NDA, of which he is a member, sees him as a valuable ally. On the podcast, we have a youth leader from the Hindi heartland. Thank you, Chirag. Thank you. May I call you Chirag firstly? Of course, yes. नहीं, it's okay to call you. नहीं, आपके fans फिर नाराज हो जाएंगे कि मंत्री को first name से बुलाया। बिल्कुल भी नहीं. Please call me Chirag. Thank you so much. Thank you. But first, before I begin with the podcast, I want to ask you about all this. ये सब, what is it? Is it friendship bands or is it religious significance? क्या है इसका? So yes, it's my friendship with my Mahadev. I'm a huge Mahadev bhakt. अच्छा. And I am very religious. I'm spiritual. I'm religious. I'm both actually. So I visit lot of मंदिर, काफी temples जाता हूँ. और and wherever I go, I get these threads from there. Okay. और साल में 4 बार, अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, so during Navratras, you know, I change all my threads. So 4 times a year I do this. So मेरे पास हर ज्योतिर्लिंग के धागे पड़े हुए हैं मेरे पास. How come you were so spiritual? Is it your upbringing, your parents, mother? So my father was not. He was a complete Nastik. He was an atheist. And वो बिल्कुल तो नहीं, बिकॉज मॉम करती थी, सो बिकॉज ऑफ हर वो थोड़ा बहुत ज़रूर करते थे, बट बहुत ज़्यादा मंदिर जाना या पूजा करना, ही वॉज नॉट इनटू दैट. But for some reason I was, right from my childhood, you know, I had this inclination, and especially towards Mahadev. You know, even I used to see pictures or, you know, idols or something. So I used to get attracted, fascinated towards it. And वो gradually over the years, जैसे मैं बड़ा होता गया, वो बढ़ता गया. And but because घर में कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का वो नहीं था, so limited ही रहता था. But then past 3 years, personally, it was a very, very difficult time for me. And I think my belief in Mahadev gave me, if nothing else, gave me a lot of gravity, a lot of self-control, which was much needed, you know. अगर ये नहीं होता तो शायद मैं बहुत बिखर जाता, because one after the other, you know, only bad things were happening to me. Split in the party, split in the family. Everything was taken away from me. I didn't know how to start, from where to start. So I think this gave me a lot of self-control, lot of gravity. In fact, I wanted to begin the podcast with this picture which we had taken out कि यहाँ मतलब ये जो हुआ था कोविड के दौरान, it was a very difficult phase for you. This particular day was very difficult, and this was actually the turning point of everything. हाँ, है ना? Yeah. इससे पहले तक क्या है, 2021 की बात, 2021, और अगर ये मैं ठीक से डेट याद करूं तो मुझे लगता है ये 15 जून की है.
15 जून की है शायद ये। 13 जून की रात आई केम टू नो थ्रू मीडिया चैनल्स दैट देयर इज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड इवेंचुअली देयर इज अ स्प्लिट इन द फैमिली एज वेल बिकॉज माई 2 member parliaments वर फ्रॉम माई फैमिली आउट ऑफ द 5 जो मुझसे अलग हुए। एंड इस दिन तक मुझे उम्मीद थी कि मैं पार्टी और परिवार को एक कर लूँगा। परिवार in the sense that your father had passed away. Yeah. And So, it was your chacha. So it was my chacha. So it was immediately after Papa was gone. So Papa left us 8 October 2020. And few months after that, 7-8 months after that, 13 जून रात में 8:30-9 बजे मीडिया से मुझे पता चला कि मेरे पार्टी के 5 सांसदों ने स्पीकर के पास जाकर अलग होने की बात रख दी है। एंड नेक्स्ट डे थोड़ा सा एनालाइज करने में लगा एंड आई थिंक उसके एक दिन के बाद की 15 जून की ये फ़ोटो है। सो मैं खुद एंड आई वॉजंट वेल, आई वॉज अंडर टाइफॉइड, दवाइयाँ चल रही थी। मेरे हाथ में कैंडुला बना हुआ है इस फोटो में अगर आप देखेंगे। सो कैंडुला बना हुआ है, ड्रिप चढ़ रहा था मुझे एंड देयर वॉज a slight weak moment, like my mother, she's always been very strong and very proper and she's been the, the strength of the family. I've never seen her getting weak. And when I was taking this drip, वो चल रहा था वैक्सीन दवाई या पता नहीं एंटीबायोटिक जो भी चल रहा था, and I just saw from the corner of my eye that mom is sitting in one corner, she's just crying by herself. वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आई जस्ट गॉट अप, मैंने गाड़ी उठाई एंड आई जस्ट लेफ्ट फॉर चाचाज हाउस विदाउट एनालाइजिंग द फैक्ट कि क्या रिएक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता है। और दरवाजा नहीं खुलेगा ये तो आपने सोचा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब ये घर, ये मेरा घर था। मैं धड़ल्ले से आता था जाता था। अगर ब्लैक एंड वाइट शब्दों में बोलूं, जाता था, ऑर्डर देता था, मुझे चाय चाहिए, मुझे खाना दो। ये मेरा घर था। फर्स्ट टाइम आई सॉ यू इन दैट हाउस व्हेन आई केम टू मीट योर डैड। यस, एंड यू वर जस्ट अ टीनेजर एट दैट टाइम, इट वाज इन दिस हाउस। और ऑलमोस्ट फॉर एन आवर दरवाज़ा नहीं खुला, गाड़ी तक अंदर नहीं आने दी। बहुत देर तक तो हम लोग गाड़ी में थे। इसके बाद फिर जाके मैंने अंदर नॉक करना शुरू किया और फिर 15-20 मिनट के बाद वन ऑफ द हेल्पर्स दे ओपन द डोर। और जब दरवाज़ा खुला, सो चाचा तो नहीं थे बट आई सॉ चाची एंड आई वॉकड अप टू हर। मैंने उनके पाँव छुए, जो मैं हमेशा करता हूँ, उनका आशीर्वाद लिया। और मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा क्योंकि वो तो मेरी माँ है ना। माँ कुछ भी हो जाए, बच्चे से नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, बट बद्दुआ तो नहीं देती। एंड मैंने जब उनके पाँव छुए, वो 2 कदम पीछे हटी और हट के मुझे बोलती हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज। मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्यों और मैं कहाँ ऐसा इतना गलत चला गया कि आप इतनी बड़ी बात मुझसे बोल रहे हो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एंड फिर वहाँ से उस दिन जब मैं वापस आया, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइड, मतलब तब समझ में आ गया कि शायद अब ये पॉसिबल नहीं है, परिवार और पार्टी अब एक नहीं हो पाएगा। एंड फिर अब उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं क्राई बेबी बन के रहता और नसीब को और अपने भाग्य को कोसता रहता कि मैंने किसी का क्या बुरा किया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा था, या तो मैं रोता रहता, और या फिर लाइक माय फादर एक फाइटर बन के उभरता और लड़ता। रीस्क्रिप्ट अगेन है ना, कि एक और स्क्रिप्ट लिखो, एक और कहानी लिखो, बिल्कुल टू राइज। बट what I find a little thing is that it's not new, क्योंकि आपने 2012 में जब आप आए थे तो 2009 के इलेक्शन में 0 था नंबर। 2012 में आप आए एंड आप संभाला, फिर एनडीए से फिर अलायंस आपने अपने फादर को कन्विंस किया। पापा वाज वेरी अगेंस्ट इट। हाँ, टेल मी दैट थिंग कि कैसे कन्विंस किया आपने? इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम, आस्क मी। अच्छा, मैं उतना ही स्ट्रांगली चाहता था बिकॉज फॉर सम रीजन, और जो अभी भी है, और इस बीच में मैंने कितने ताने सुने मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर, बहुत बातें मैंने सुनी हैं, एक तरफा प्यार है, अकेला हनुमान बना फिरता है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मैंने सुना। बट उस वक्त भी ये था, माई अट्रैक्शन टूवर्ड्स माई प्राइम मिनिस्टर, वो जो बोलते थे, उनकी बातें, उनकी स्पीचेस कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। एंड आई वांटेड कि हम लोग उनके साथ अलायंस में जाएं, बट पापा वाज वेरी कंफर्टेबल इन यूपी अलायंस दैट टाइम, and he wanted to continue in that alliance. So I remember it was बहुत पहले, मुझे लगता है 2013 अक्टूबर नवंबर की बात है, अभी तो इलेक्शंस में समय थे, 6-7 महीने था। सो दैट टाइम मैंने बहुत हल्के से आई टोल्ड पापा कि आई थिंक हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंसेस भी सोचने चाहिए। सो पापा वाज लाइक कि ऑप्शंस क्या है? आई सेड बीजेपी
एंड छूटते ही पापा सेड कि मैं जहर खा लूँगा बट भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा। मतलब वो इतना अगेंस्ट थे जाने के। एंड उसके बाद फिर कई महीनों तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बट इतना था कि मुझे इन द मीन टाइम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी। बोर्ड में जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की तो मुझे समझ में आया कि हर कोई चाह रहा है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव अलायंस, बिकॉज जिस अलायंस में थे, नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस बट बिकॉज ऑफ लालू जी एंड राजद की वजह से हम लोग को बहुत कॉर्नर किया जा रहा था। उनकी पार्टी में उस वक्त कई नेता ऐसे थे जो बोलते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए। 2.5 कैसे, एक पापा को, एक चाचा को और मुझे आधा ही मानते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए। पहलवान दिखाएं, इन लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए पहलवान का है। तो ये सारी ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट्स राजद की तरफ से उस वक्त आते थे। सो मतलब पार्टी के कई नेता भी इस सोच के थे कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंस कंसिडर करना चाहिए। Papa kept meeting Sonia ji that time, and Sonia ji wanted Papa to meet Rahul ji, but somehow कभी वो मुलाकात ही नहीं हुई, and eventually वो समय बहुत खिंचता गया। You never met Rahul Gandhi उस वक्त? No, मी क्या पापा, कभी हम दोनों की मुलाकात हो ही नहीं पाई। सोनिया जी से ज़रूर हम लोग की मुलाकातें हुई, 3 बार मुलाकातें हुई, बट तीनों बार शी सेड कि इवेंचुअली राहुल जी से मिली, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उस वक्त 2013 या 12-13 की टाइम, उस वक्त जेटली जी वाज इन टच एंड ही वाज सेंडिंग फीलर्स आल्सो ना। सो यस, वो फीलर्स आ रहे थे। उस वक्त अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे। मेरी बातचीत ज़रूर चल रही थी बिहाइंड द कर्टन, बट पापा के सामने ये रखे कौन। सो वन डे आई रिमेंबर कि पापा वॉज वेरी अपसेट विद वन ऑफ द मीटिंग, सीपी जोशी जी के यहाँ मीटिंग थी, एंड अगेन अलायंस को ही लेकर यूपीए में और ये सब वो सब, एंड पापा वॉज वेरी वेरी अपसेट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दैट मीटिंग। पापा वॉज लाइक यार, मतलब इतना भी क्या, मतलब आप इतना दौड़ा रहे हो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एंड यू गाइस आर नॉट गिविंग एनी क्लैरिटी। So that was, I don't know, it was a weak moment or what पापा just told me गाड़ी में बैठते ही कि तुम बोल रहे थे ना ऑल्टरनेटिव उसका, तो बात करो एक बार। मैं अभी बीच में नहीं आऊँगा, बट तुम अपने हिसाब से बात करो, तुम्हें लगता है अगर कुछ वर्कआउट हो रहा है। दैट गेव मी दैट किक कि अब करना है। किससे बात की आपने? राजनाथ जी से? जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। उस वक्त काफ़ी लोग थे, रविशंकर जी थे, रूडी जी थे, शहनवाज हुसैन जी थे, सब लोग, मतलब ये वो लोग थे जिनसे मेरी वैसे भी बातचीत होती रहती थी, तो तुरंत वो रास्ता मिल गया। एंड काफ़ी दिग्गज नेता है बीजेपी में बिहार से, तो आई एम श्योर कि उस वक्त टू सी यू एज अ यंग पर्सन, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली it was the same night that I had my first meeting also with Rajnath ji, और वहाँ से फिर चीज़ें आगे बढ़ने लगी। So now let's come to the present, 100% strike rate. So did you expect it कि सारी सीटें आएंगी? I did. I expected it. I worked very hard on it. मैंने बहुत मेहनत की थी, और मुझे खुशी इस बात की थी क्योंकि ये क्लैरिटी मुझे काफ़ी समय पहले आ गई थी दैट आई बी रिटेनिंग ऑल दो सीट जो मैंने 2019 में मैंने जीती हैं। फिर 2019 में योर फादर वाज देयर, या पापा वाज देयर, उनके छत्र छाया में वो सीटें हम लोगों ने जीती थी। right. और अब इस बार इट वाज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर हारे तो इट्स योर्स एंड जीते तो भी इट्स योर्स। इट्स अ बिग थिंग। Yeah, so for a long time I was working on those seats, my regular programs on those seats. दो candidate final नहीं थे, and but मेरी मेहनत संगठन के तौर पर I was working very hard on all 6 seats जो हम लोगों ने 2019 में लड़ी थी, and I was expecting कि उन्हीं 6 में से ही जो मिलेंगी मुझे मिलेंगी। So I was prepared that ways. बट देन येस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स, जब ये फाइनल हुआ कि उनमें से कौन कौन सी सीटें मिल रही हैं, एक नवादा की सीट आई हैड टू लेट गो, बट अदरवाइज आई रिटेन्ड ऑल दोज रेस्ट ऑफ द 5 सीट्स, एंड देन कैंडिडेट सिलेक्शन आई न्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई टुक good time, good 15-20 days I took before I announced the candidates. Candidates announce होने के बाद भी मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं, मेरा बहुत विरोध हुआ है, even within the party, there was a strong section because मेरा candidate selection का सिर्फ 2 आधार था. एक, I wanted young faces, I wanted young educated faces, ऐसे चेहरे जो एक नए बिहार की छवि प्रस्तुत करें.
अभी जो तक आपका हम टैगलाइन भी है. हाँ my MY समीकरण is this महिला and युवा. So I wanted good representation of women, I wanted good representation of youngsters and well spoken, well read, well educated, articulate people, you know, to represent my state in a better manner. So एक तो वो था क्राइटेरिया, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफ कोर्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब तक आप जीतते नहीं हो मायने नहीं है. सो विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था. सो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे जातीय समीकरण नहीं था. बिल्कुल नहीं, जातीय समीकरण बिल्कुल नहीं. एंड मतलब जो भी बिहार की राजनीति को जानता है, खगड़िया से जिसको मैंने टिकट दिया, राजेश वर्मा, वो जिस जाति से आते हैं और खगड़िया में जो जातीय समीकरण चलता है वो एकदम उसके विपरीत हैं. वो वहाँ से चुनाव जीते हैं क्योंकि 3 सीटें तो खैर रिजर्व्ड हैं, तो मुझे अनुसूचित जाति में से ही देनी थी. बट बाकी की जो 2 सीटें हैं उसमें से खगड़िया वाली सीट अगर आप देखेंगे तो राजेश का जातीय समीकरण में बिल्कुल वो नहीं. और इसने मेरे विश्वास को बढ़ाया कि बिहार में अगर आप जातियों से उठकर अगर आप महिला युवा के समीकरण को अगर आप प्रमोट करते हैं तो लोग आपका जात पात धर्म मजहब से उठकर आपका साथ देते हैं, जो मुझे मिला. तो मैंने कैंडिडेट्स पे भी मैंने बहुत काम किया. इसीलिए राइट फ्रॉम डे वन अगर आप मेरे सारे बाइट्स उठा के देखें, खैर मीडिया के सामने तो हर कोई बोलता ही है, बट इवन ऑफ रिकॉर्ड आई हैव ऑलवेज सेड दिस टू ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स कि देखना मैं 5 की 5 जीत रहा हूँ और बड़े मार्जिन से जीत रहा हूँ, और बड़े मार्जिन से मेरी 5 सीटें जीती हैं. आप कह रहे हैं जाति समीकरण से आगे उठ के, ऊपर उठ के, लेकिन मीडिया में तो कह रहे हैं ही इज द न्यू दलित आइकॉन ऑफ बिहार. डू यू सी योरसेल्फ? Just by the virtue that I come from that background, definitely yes. And yes, Dalit issues हैं, Dalit concerns हैं. I mean, I can't run away from those concerns and those issues. आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी भारत में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, एक दलित या युवा दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, गाहे बगाहे ये उदाहरण मिलते हैं. सो डेफिनेटली एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और फॉर दैट मैटर एनी डिस्क्रिमिनेशन, आई एम टोटली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वेदर इट्स बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, रिलीजन, वॉट एवर इट इज. सो Because you're talking about 19 to 20% of the population in Bihar, and that comes to about 2.56 crores. And so they are among the poorest in the state. So if they see hope in you, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? नहीं, डेफिनेटली आई मीन आई वॉन्ट देम टू हैव दैट बिलीफ इन मी. मैं उनकी उम्मीद बनना चाहता हूँ. इंसान टूटता तब है जब आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जब आपकी आस ही ख़त्म हो जाती है कि भाई कुछ है ही नहीं. तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी उम्मीद बनूँ, और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए भी हर संभव प्रयास मैं करूँगा. मैं इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि मैं भले जात पात धर्म मजहब में मैं नहीं मानता, और मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूँ, बिकॉज समबडी नीड्स टू टॉक अबाउट दिस. आई थिंक आई एम द ओनली वन हु इज़ गॉट द गट्स टू स्टैंड ऑन अ पॉलिटिकल मंच इन बिहार एंड से दिस कि मैं जात पात धर्म मजहब में मैं नहीं मानता. और मैं खुल के इस बात को मैं बोलता हूँ. पर वो थोड़ा प्रिविलेज वाली बात है ना कि आप मानते नहीं है, बट that's because you haven't faced probably. I agree, absolutely. क्योंकि संभवतः मेरा अनुभव ऐसा नहीं lived रहा. experience वैसे नहीं yes. But then I have lived it through my father. उनके experiences रहे हैं. I have lived it through lot of my other relatives जो आज भी गांव में रह रहे हैं और गाहे बगाहे उनको ऐसे अनुभव झेलने पड़ते हैं. सो डेफिनेटली मेरी वो लड़ाई उनके लिए है, मेरा वो कमिटमेंट भी उनके लिए है. बट हाँ, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ पर ये सारी बंदिशें टूटें, ये सारे भेदभाव फेड आउट हों. And उसके लिए ideally somebody needs to everybody talk should about be it. working Yeah, on yeah. that. I want to show you this statistics. जैसे ये हैं देखिए, 243 members of the Bihar Legislative Assembly, right? And the majority belong to the Yadav community with 55 members. The OBC, EBC communities, that is for our external audiences, those are other backward castes and economically backward castes, right? They comprise of 46 members of the Legislative Assembly. Bhumihars, which is you're talking now, Bhumihars, Rajputs, Kayasts, Brahmins. अब इनके 64 members हैं, right? And this is the upper castes we are talking about. So out of the 243 members, Muslims have 19 members, while OBC, EBC communities 46, Dalits at 39, 28 are women MLAs in this. So, you know, it's not really representative of the caste breakup actually. I mean, clearly you can see, though one is working, or what you are saying is everybody should work towards it, ki caste doesn't matter, but you're talking about
the minority upper caste having more representation than see now your OBC EBC जो हैं वो 45 है, ये 64 है. वहाँ पे आप अगर देखें तो यादव्स are quite a lot. The Dalits don't have as much. So you tell me that when an assembly, when those who are making laws, जब वहाँ पर ये you're seeing this kind of inequality, what do you suggest should be the change? जातीय जनगणना के हिसाब से should there be representation? क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, हमारे राज्य में जातीय जनगणना हो चुकी है, हाँ. और वहाँ पे हम लोग के पास आंकड़े भी हैं कि किस जाति की क्या आबादी है. डेफिनेटली जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी, ये बातें होती रही हैं लंबे समय से. डेफिनेटली आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पॉलिटिकल पार्टी की है कि वो उचित रिप्रेजेंटेशन करें. बट हैविंग सेड इट ऑल, अगेन आई विल कम बैक टू माय थिंकिंग वेयर आई बिलीव कि जाति से ऊपर उठकर नेता की काबिलियत होनी चाहिए. द प्रॉब्लम विद माई स्टेट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट दैट इवन इफ द नेता ऑफ योर जाति इज नॉट वर्किंग फॉर यू, बट जस्ट बाय द वर्च्यू ही बिलोंग्स टू योर जाति इज द रीजन यू स्टार्ट वोटिंग फॉर दैट पर्सन. नो मैटर फॉर डेकेड्स ही माइट नॉट हैव वर्कड फॉर यू. लेकिन नीतीश जी के साथ ऐसे तो हुआ नहीं ना. इट वाजंट जस्ट हिज जाति. He was getting votes from different jatis. So I can understand ki Lalu Yadav, because his was the Yadav community, which was outright he represented them, and they benefited. But Nitish ke liye to people from all castes voted. Yes, all castes voted, and I think I'll give this to my chief minister that I think he has engineered the social engineering beautifully in my state. Unlike the other party, and especially Rashtriya Janata Dal, who has mainly focused on their MY Samikaran, that is Yadavas and Muslims, and which is not correct. And I think the rest of the representation is also because of us, the NDA alliance, who actually, give chance to other people coming from various other castes also to come and represent. But see, when you were when we talk about your father, he talked about Bihar first, Bihari first. But the fact is that the state is still one of the poorest in the country. It is not something, whether Nitish ji ho jaye, Lalu ji ho jaye, or your father, they all had these dreams. Now you are the next generation between you and Tejashwi. What is it that you are promising other than a slogan? How do you plan to change the state of Bihar? Because anybody thinks of Bihar, everybody thinks of poverty. Hai ki nahi? Crime and poverty. That's poverty. Right. Okay, so I'll just take 5 minutes of yours now to explain this, because I love talking about this, because Bihar first, Bihari first is something जिसको मैं जीता हूँ रोज़. And वो मेरा सपना नहीं है, वो एक ऐसी हकीकत है जिसको रोज़ मैं देखता हूँ सामने. बस अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है. मतलब, trust me when I say this, ask me about any problem that my state faces and I have got a solution to it. मैंने सालों दिए हैं इसके लिए. मैं दिल्ली में रहा, बम्बई में मैंने काम किया. मेरा राजनीति में आने का कारण ही सिर्फ यही रहा क्योंकि मुझे इस बात की तकलीफ़ होती थी जब मैं दूसरे राज्यों में बिहारियों को पिटते हुए देखता था, या बिहारी शब्द को गाली बनते हुए जब मैंने सुना. अगर किसी को गाली, ये बिहारी, जो मेरी पहचान है वो गाली नहीं बन सकता. मैं दूसरे राज्यों को देखता हूँ, महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, मराठा प्राइड के लिए लोग लड़ते हैं, बंगाल के लोग अपने आप को बंगाली बोलते हैं, पंजाब के लोग गर्व से पंजाबी बोलते हैं. मैं दूसरे राज्यों में जाता हूँ, बच्चे मेरे कान में आके बोलते हैं कि भैया हम भी बिहार से. तो मैं बोलता हूँ बताओ. बोलते नहीं भैया यहाँ पे किसी को बताया नहीं. क्यों? क्योंकि बिहारी बोलने में उनको शर्म आ रही है. बिहारी जो हमारी पहचान है वो अगर आपके लिए शर्मिंदा का कारण बन रहा है, ये बहुत गलत है. और इसी बिहारी अस्मिता की लड़ाई को लड़ने के लिए ही मैं राजनीति में आया. नाउ यू आस्क मी हाउ. बिहारी, पहली बात तो हम लोगों में इतना टैलेंट है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. आप मीडिया हाउसेस में ही देख लीजिए, टॉप पोस्ट पे आपको बिहारी मिल जाएंगे. बिल्कुल. आप बिजनेस हाउसेस में चले जाइए, CEO CFOs आपको बिहारी मिल जाएंगे. मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में चले जाइए, HODs आपको बिहारी मिल जाएंगे. नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी मिल जाते हैं. तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये हम लोग को अध्ययन करने की ज़रूरत है, और जो मैंने किया इसके ऊपर बिगेस्ट कारण यही रहा. ये जात पात धर्म मज़हब में हम लोग उलझ कर रह गए, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बढ़ते गए. बिहार में जाते ही लैंड आप कीजिएगा, आपको भूमियार मिल जाएंगे, आपको राजपूत मिल जाएंगे, ब्राह्मण मिल जाएंगे, दलित मिल जाएंगे, बैकवर्ड मिल जाएंगे, आपको अति पिछड़ा मिल जाएंगे, महादलित मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे, बट कोई बिहारी आपको नहीं मिलेगा. ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है. कोई नहीं बोलता कि मैं बिहारी हूँ.
ये प्राइड जब तक आप में नहीं आएगा, जब तक हम सब एक होकर हम लोग नहीं लड़ेंगे, तब ये तो हो गया इमोशनल पार्ट ऑफ इट। नाउ द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। बिहार में मैं हमेशा मानता हूँ कि एक तरफ नहीं, आपको मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच आपको करने की ज़रूरत है। शिक्षा, नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे, जब देश तो भूल जाइए दुनिया ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी। आज तक प्रधानमंत्री जी अपने बैकड्रॉप में G20 देशों के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो बैकड्रॉप में नालंदा यूनिवर्सिटी को रखते हैं। वहाँ पर शिक्षा के हालात, कोटा में आज भी मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ऐसे जिलों में नहीं हो सकती? इस पे काम करने की ज़रूरत है। बट इस पे काम करने की हम लोग को ज़रूरत है। हम लोग जब तक माइग्रेशन को नहीं रोकेंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर निकलते हैं ना, कोई भी सक्षम परिवार जैसे ही थोड़ा सक्षम होता है, सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। हाँ। वो दूसरे राज्य जाएगा, वहीं पे अपनी पढ़ाई करेगा, वहीं पे नौकरी करेगा, वहीं पे घर खरीदेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और अपने ही प्रदेश के लिए वो प्रवासी हो जाता है और उसी राज्य का फिर वो बन के रह जाता है। पहले तो ये माइग्रेशन रोकना है, पलायन रोकना है। रिटेन करने के लिए बेटर एजुकेशनल हब्स हम लोग को क्रिएट करने होंगे। स्कूल की एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, उसकी सुविधाएं हम लोग को बना के देनी होंगी। हम लोगों को बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है, उस पर हम लोग को काम करना होगा। लैंड रिफॉर्म्स हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत है। आज आप बिहार में जाके ज़मीन खरीद लीजिए, आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी बट आप ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, इतना मुश्किल है वहाँ पे ज़मीन खरीदना। ईज़ ऑफ बिज़नेस हम लोग को देना होगा ताकि निवेशक आए हमारे राज्य में, आकर निवेश कर सकें। राज्य का राजस्व बढ़ाना होगा और हम लोग का तो राज्य इतना ब्लेस्ड है, मैं क्या बताऊँ। रिलीजियस टूरिज़्म की अनंत संभावनाएं हैं। आज अयोध्या में एक भगवान राम का मंदिर वहाँ पे बना, पूरा क्षेत्र का राजस्व, इकोनॉमी उठने लग गई। मेरी माता सीता की धरती है वो। अगर ऐसा ही अगर एक मंदिर वहाँ पे बन जाए, 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए, माता सीता का आशीर्वाद लेने आए, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। ना सिर्फ माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है वो। अगर रिलीजियस टूरिज़्म को अगर हम लोग वहाँ पर डेवलप करने लग जाएँ, उससे रेवेन्यू जनरेशन होगा। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी दी, क्योंकि मैंने बिहारी फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा की। मैं हाजीपुर से आता हूँ। हाजीपुर का केला, वही केला जब डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स में बन जाता है, उसके दाम कितने बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर उसका प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, उसकी पैकेजिंग होने लग जाए, उसकी मार्केटिंग होने लग जाए, मेरे किसानों को वहाँ पे ज़्यादा दाम मिलने लग जाएगा। मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना, दुनिया में लोग आज उसकी डिमांड कर रहे हैं। इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पर लग जाएँ तो वहीं पर किसानों की आय भी बढ़ेगी, हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। तो ये ऐसी कुछ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हैं जिस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी सरकार ने नहीं की। और मेरे मुख्यमंत्री जी से जो पीछे कुछ समय तक जब इशू भी थे, जब हम लोग गठबंधन से अलग थे, मैंने हमेशा कहा कि मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट मुझे है कि चीज़ें हम लोग और बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज मेरे पास वो मौका है कि मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को ये तमाम बातें बता सकता हूँ और धीरे धीरे करके इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नदियों को जोड़ने की योजना, अभी मैं कल परसों भी इस पर काम कर रहा था। हम लोग स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं बिहार के लिए, जिसमें मैं चाहता हूँ, अब ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट मैं बता सकता हूँ आने वाले दिनों में आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा, आधा सुखाड़ में डूबेगा। आधी जगह इतना पानी होगा, आधी जगह बिल्कुल नहीं होगा। सो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। सुखाड़, बाढ़ के इलाके से सुखाड़ के इलाकों में पानी को चैनलाइज करके लेके जाने की ज़रूरत है। ये ऐसे काम है, 5-6 ऐसे बड़े बिंदु हैं जिस पे अगर काम कर लिया तो बिहार को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2 थिंग्स आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। एक तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री से आप मिलने गए थे, ब्रिजेस के बारे में बात करने गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने गए थे। एक तो वो, एंड द अदर वन इज़ अबाउट द स्पेशल पैकेज जो डिमांड है बिहार की। इन दोनों के बारे में आप बताइए कि क्या बात हुई आपकी नीतीश बाबू के साथ। पहली बात तो ये बहुत गंभीर विषय और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से बैक टू बैक ब्रिजेस राज्य में गिरे हैं, और इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। एंड वी नीड टू सेट प्रेसिडेंट जहाँ पे लोग भविष्य में ऐसी गलतियां करने से डरें। जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे भी ये चलता रहेगा। मेरे मुख्यमंत्री जी का हमेशा कहना है कि 0 टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए रहा है। अगर इस तरीके से गुणवत्ता से अगर समझौता हो रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, और जिसने किया है उसकी जवाबदेही तय कर भविष्य में गुणवत्ता के साथ
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, कोई समझौता नहीं हो, इसके लिए हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। जो मेरी कल मुख्यमंत्री जी से ही बातचीत हुई एंड ही एब्सोल्युटली एग्रीज टू दिस एंड वी आर मेकिंग श्योर। अब खैर मैं इसमें भी नहीं जा रहा कि उस वक्त किसकी सरकार थी, गठबंधन में और कौन थे, कौन मंत्री थे, फिर वो आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। द बक नीड्स टू स्टॉप समवेयर एंड वी आर रेडी। मतलब मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ कि हमारी सरकार से ये गलती हुई है, भले उस वक्त सरकार किसी की भी हो, बट आज अगर ये हुआ है तो हम लोग को इस पर सुधार करने की ज़रूरत है एंड वी विल डू दैट। हैविंग सेड दैट, जो दूसरा मामला था विशेष राज का दर्जा, ये एक लंबे समय से मांग बिहारियों की रही है। स्पेशल स्टेटस हम लोग को मिले। कई राजनीतिक दल जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां इसके ऊपर सेकते रहते हैं और लोगों को से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं बाय सेइंग दिस विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। आप एक बार जाइए, पढ़िए तो भाई कि नीति आयोग में क्या क्या प्रावधान है, कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सिर्फ ये मांग करते करते जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं आप अपने आप को उससे भी दूर कर रहे हैं। लेट्स बी लिटिल प्रैक्टिकल एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट वी कैन गेट इमीडिएटली। डबल इंजन की सरकार है, लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट माय गवर्नमेंट, इवन एट द स्टेट लेवल, एनडीए की गवर्नमेंट, वी आर वर्किंग, वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ पैकेज। एक स्पेशल पैकेज हम लोग को मिले जिसमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हों, जिसमें मैंने नदियों को जोड़ने का भी मैंने प्रस्ताव अपनी तरफ से वहाँ पे दिया है कि उस पर भी हम लोग को बात करनी चाहिए। ऐसे पैकेजेस हों, ऐसी राशि हो जो आए और तुरंत उसका हम लोग इस्तेमाल करें ताकि तुरंत लोगों को उसका लाभ मिलने लगे। विशेष राज का दर्जा भी भाई एक आपको आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही आप मांगते हो, बट अगर उसमें अभी कठिनाइयां आ रही हैं तो कम से कम स्पेशल पैकेजेस हम लोग को डिमांड करने चाहिए, जो आई थिंक इन द प्रोसेस है और जो हम लोग सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे एंड आई होप एंड आई बिलीव कि वो हम लोग को दिया जाएगा। You don't have much time in the sense that, as per statistics, 1/3 of the people in your state survive on less than 6,000 rupees a month. That's not enough even for food, let That's alone right. housing or educating their children. कुछ नहीं हो सकता 6,000 रुपए. Now you have the next 5 years to prove yourself. Nitish ji has less than that because the state goes to polls. How do you plan to convince the people not to elect the India Alliance and to give a chance to the NDA? I think the people of my state have that belief in us now. Also because of the fact that the central government now, of course with the help of the state government, we are delivering. You know, people have seen us delivering. ऑल द नेशनल पॉलिसीज़, जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं जो सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसका लाभ आज से पहले ना के बराबर लाभार्थियों को बिहार में मिला था, नाउ दोज बेनिफिशरीज आर देयर। ये कोई छोटी बात नहीं है, शायद शहरों में रहकर हम लोग को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, बट महिलाओं के लिए आज इज्जत घर बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। महिलाओं को आज उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 6,000 रुपये मैं बिल्कुल मानता हूँ कतई काफ़ी नहीं हो सकते किसी भी परिवार के लिए, बट वहीं पे सरकार ने आर्थिक मदद उनको देने का काम किया, 5-5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देकर। देश की एक बड़ी आबादी 80 करोड़ लोगों को, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि ये उनकी सोच थी और प्रधानमंत्री जी का साथ था, जिसकी वजह से इस योजना को धरातल पर उतारा जा सका। आज एक गरीब परिवार जिसको प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, ये अपने में एक बहुत बड़ा, कम से कम उसको खाने की चिंता नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा सहारा मिला उन गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। पिछले 10 सालों में अगर 25 करोड़ से ज़्यादा परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं तो उसमें ये हैंड होल्ड करने वाली जो स्कीम्स है उसका बहुत सहायता रही। आज अगर कोई बीमार होता है, पहले महिलाओं को अपने जेवर बेचने होते थे, ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, बट आज उनके पास आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था है। तो ये जो सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए गए हैं, इस पर लोगों का विश्वास है। बट हाँ, लोगों को अभी और कन्विंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परिणाम आए वो हम लोग के लिए ज़रूर चिंता का विषय है। बिहार में भी हम लोग और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे, बट हाँ कंपैरेटिवली हम लोगों ने बहुत बेहतर किया। बट हाँ, लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत होगी कि डबल इंजन की सरकार के क्या क्या लाभ होते हैं, और मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं। Are you going to be the bridge between the BJP at the center and Nitish Babu in the state, in the sense of
making sure that the NDA alliance works? Well, I mean, I definitely Like I would said be. कि अब 5 साल आपके पास हैं और उससे कम टाइम नीतीश बाबू के साथ है और अटकलें काफ़ी लगाई जाती हैं कि I mean everybody knows he is called the Paltu Ram and things of politics. So are you being sent to gauge कि वो नाराज हैं कि रुस गए हैं कि are you the one who is going to be No, sent? I think my chief minister and my prime minister shares a beautiful equation between both of them. So they don't really need a bridge, and least of all someone like क्योंकि me, they don't you know really need that. the results, Chirag, is not something that the BJP expected. Everybody knows that. And आपने जो लिस्ट गिनाई कि इतने शौचालय बने, अनाज पहुंचाया, तो ये जो लाभार्थी हैं उन्होंने not necessarily voted दिया है to the NDA government. So earlier what used to happen is that the earlier election the लाभार्थी vote went for the NDA. लेकिन इस election में you cannot count or you cannot take for granted कि जो schemes पहुंची हैं, गिरिराज जी himself said कि बहुत से लोग हैं जिनके घर बने हैं अंडर PM आवास, जिन्हें अनाज मिला है, जिनके घर में चूल्हा आया है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आया तो उन्होंने वोट नहीं दिया. So there's a disgruntled group of people who are not necessarily voting for you, and you have a short period of time now. You have been given a portfolio. तो आपका 100-day एजेंडा क्या होगा कि आपने क्या करना है अपने राज्य के लिए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 100 days कि जल्द से जल्द लाभ जो है वो आपके इलाके में पहुंच सके आपके लोगों को. नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली उस पर हम लोग काम कर ही रहे हैं. सरकार ने भी अपना 100 डे का एजेंडा तय किया है. मैं एक सेकंड में उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं. जहाँ पे लाभार्थियों का साथ मिलना नहीं मिलना, उसमें कम ज़्यादा मैं कई बार इस बात को ही मानता हूँ कि हम लोग इतने एग्रेसिव थे इलेक्शंस को लेकर कि कई लोग रिलैक्स भी हो गए. हम ही लोगों के लाभार्थी हों या वोटर्स हों या बेनिफिशरीज हों, उनको लगा अच्छा जीत तो रही हैं, मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है. ये भी काफ़ी जगह मैंने अनुभव किया है जहाँ पे जिस उत्साह के साथ लोगों को निकलना चाहिए था वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि अरे जीत तो रही हैं. एक चीज़. दूसरा, फॉल्स नैरेटिव जो विपक्ष ने सेट किया, विच इज़ आई थिंक वेरी हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक अस, जो कि सिर्फ डेमोक्रेसी पे जो कंट्री चलती है, जहाँ पे लोगों के पास विकल्प होते हैं, स्वतंत्रता होती है अपने नेताओं को चुनने की. ऐसे में अगर नेता आपको झूठ बोलने लगे, आपको डराने लगे, नैरेटिव विपक्ष के द्वारा क्या सेट किया गया, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा. इमेजिन, लोकतंत्र की बात ये विपक्ष के लोग कर रहे थे जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की. ये लोग वो नैरेटिव सेट कर रहे थे. एंड आई हैव टू से दिस, मतलब लोगों ने माना भी है. डर इन्होंने बैठाने में ये लोग कामयाब रहे. ये बिहार में भी मेरा अपना अनुभव रहा. आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन माय प्राइम मिनिस्टर केम जमुई, जब वो आए उसी दिन मैंने बोला कि सर वापस से आरक्षण और संविधान का मुद्दा विपक्ष फैला रहा है एंड वी नीड टू बी एग्रेसिव एंड विद योर परमिशन आई वांट टू गो ऑल आउट एंड आई वांट टू बी एक्सट्रीमली एग्रेसिव ऑन दिस इशू. एंड होता क्या ना कि जब आपका अपना कोई ये बात बोलता है तो लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है रादर देन एनीबडी एल्स सेइंग दिस. इफ़ आई से दिस कि आरक्षण को खतरा नहीं है, मेरे लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे. व्हेन आई से मेरे लोग, मतलब वो लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो इसी कम्युनिटी से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उन लोगों को ज़्यादा विश्वास आप पर होगा कि अगर ये बोल रहा है तो शायद ठीक बोल रहा होगा. और मैंने बोला भी है कि मैं सरकार में एक पहरेदार की भूमिका में हूँ, किसी के साथ कोई अन्याय कतई नहीं होने दूंगा. सो आई वॉज वेरी एग्रेसिव ऑन दिस. बट हाँ, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विपक्ष ने इस गलत नैरेटिव को सेट करने में, और ये मुझे लगता है जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है. आप लोगों को डरा कर, झूठ बोलकर आप नहीं, देश तो भूल जाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर सकती है. ये कोई खैरात नहीं है, संवैधानिक अधिकार है. और जब आप संविधान पे ही आप सवाल खड़े कर देते कि इसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप तो बाबा साहब पे ही आप उंगली खड़ी कर रहे हैं. तो फिर क्या तो आप उनकी सोच को मानते हैं, आप तो उन्हीं पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके संविधान को कोई समाप्त कर देगा. और मेरे प्रधानमंत्री जो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हों जिस संविधान की वजह से, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हों जिस संविधान की वजह से, कोई क्यों संविधान को समाप्त करना चाहेगा. बट जब आप डराते हैं, लोगों को डरा कर वोट लेते हैं, ये गलत बात है, ये गलत सोच है. सो डेफिनेटली हम लोग उस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा काउंटर कुछ राज्यों में नहीं कर पाए. ये हम लोग की एक चूक ज़रूर रही. एंड वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स नाउ. सो एक तरफ बेनिफिशरीज़ को लाभ पहुंचाते हुए, गरीब कल्याण की योजनाओं को और मजबूती देते हुए, आगे से ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई किसी को डरा के वोट ना ले पाए.
गलत narratives गलत you're saying. नैरेटिव ना सेट कर पाए. ठीक है. And the other one which I was asking you was, as minister, do you have a 100-day plan कि आप जल्द से जल्द जो है you can bring about change? Because it is your father's portfolio also. Yes. And he did a lot when he was minister. तो वो भार भी है आपको, right? It's a big shoes you have to fill. Yes, big तो- shoes that I have to fill, and definitely we have already started working Okay. on the 100. Not only working on the 100 days plan, started executing. Firstly, are you happy with the portfolio? Oh, I'm very happy. I told you, I mean, this is like a dream come true. I mean, I used to talk day and night about this कि प्रोसेसिंग यूनिट्स बिहार में होने चाहिए. मेरे हर इंटरव्यू में आप सुनिएगा कि मैं प्रोसेसिंग यूनिट्स की मैं बिहार के लिए मैं बात करता था, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है. सबसे ज़्यादा लाभ आप किसानों को इसी के माध्यम से आप दे सकते हैं. And the day when I came to know that I have got this, and so yeah, I mean, very happy, and yes, a lot to do now, and in another 100 days definitely yes, but in coming years I think काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा. Okay. Also tell me about your Twitter or X handle जिसमें आपने लिखा हुआ है युवा बिहारी युवा चिराग बिहारी. पासवान. Why you talked about it कि the term Bihari Yeah. is seen as a gali in many Right. places, and that really upsets you. Right. You've also worked in Bombay, right? In the film industry. तो क्या उस वक्त भी was that term used? क्योंकि in film terminology, फिल्मों में तो काफी कहते हैं ना बिहारी बिहारी, they That's say right. these kind of That's things, right. and then ये जो OTT serials है वहाँ पे भी आ जाता है. So do you feel upset? Do you feel Of course, I am a बिहारी. और जब मैं देखता हूँ कि बिहारी शब्द को किसी हीन भावना के साथ या टू डाउन समबडी, अगर जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये चुभता है. और एंड एज आई टोल्ड यू, मेरी तो लड़ाई इसी बात को लेकर रही कि बिहारी अस्मिता, बिहारी प्राइड की हर कोई गर्व करे. जैसे दूसरे राज्यों के लोग गर्व से बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि बिहारी भी गर्व से बोलें, रादर घमंड से बोलें कि हम बिहारी हैं. उसके लिए इसीलिए मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मैंने युवा बिहारी मैंने लिखना शुरू किया. एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ ओपनली हर एक जगह कि मैं बिहारी हूँ. मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे देख के कोई 10 लोग भी अगर खुल के बोलें और गर्व से बोलें कि मैं बिहारी हूँ, मेरी वो सोच कामयाब होगी. बट हाँ, सिर्फ कहते रहने से ही नहीं होगा. बिहार पे गर्व करने के लिए बिहार के उस खोए हुए गौरवशाली इतिहास को भी हम लोग को पुनर्जीवित करना होगा. वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, सो दैट विद utmost pride we can say we are Bihari, because we have everything that Bihar needs. हम लोग को सुख सुविधाएं बिहार में लानी होंगी, जिसकी तरफ भी मैं काम कर रहा हूँ. Chirag, your party, or rather your NDA alliance partners, they keep talking about parivarvad. They talk कि जो Shiv Sena, the inheritor of Shiv Sena legacy shouldn't be Uddhav. It should be whoever the party decides. The same thing can be applied to you. Absolutely. How do you become the automatic inheritor of your father's legacy? तो मैं बिल्कुल नहीं बना ऑटोमेटिक. I mean, तो चाचा जी बने नहीं तो I had to prove myself, and I think for once, ये तो खैर मुझे नेपोटिज्म भी मुझे कोई बहुत वो समझ में नहीं आता. आप एक ऐसी दो धारी तलवार पे चल रहे होते हो ना, एज अ नेपो किड. Okay, so I'll tell you the other side of the you story. have no issues being called a nepo kid. No, I am a nepo kid. I mean, I can't shy away from the fact. मैं कैसे झुटला सकता हूँ. और मुझे तो गर्व होता है कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ. मेरे लिए तो मैटर ऑफ प्राइड है. बट हाँ, जिस प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन की वजह से अब मैं नेपो किड कहलाया जाता हूँ. बट मैं क्या करूँ, मैंने तो दूसरा प्रोफेशन भी ट्राई किया था, नहीं हुआ कुछ. हम नेपो किड्स को और कुछ आता ही नहीं, कोई घर पे ही आप यही सारी चीज़ें देखते हो तो आप क्या करोगे. बट हैविंग सेड दैट, ऑन अ लाइटर नोट, बट हम लोग ऐसी दो धारी तलवार पर चलते हैं ना. अगर आपने एज अ नेपो किड अपने माता पिता ने जो किया, अगर आपने वही कार्य सक्सेसफुली कर लिया तो आपको तो करना ही था, क्योंकि आप उनके बच्चे हो. बट अगर आपने नहीं किया तो देखो, माँ बाप ने इतना नाम किया, बेटे ने बेटी ने नाम डुबा दिया. तो आप अच्छा करोगे तो भी श्रेय आपका नहीं है, बुरा करोगे तो गालियाँ आपको सुननी पड़ेंगी. तो आप हमेशा एक दो धारी तलवार पर आप चलते रहते हो. बट जहाँ तक रही बात मेरी, मुझे लगता है कि अब तो शायद वो नेपो किड के टैग से मैं हट गया हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा स्ट्रगल किया. मुझसे तो सब ले लिया गया था एज अ नेपो किड. मेरी पार्टी मुझसे छीन ली गई, जिस पार्टी को पापा ने खून पसीने, लिटरली खून पसीने से बनाया था. पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल, पूरा संगठन, घर जहाँ पे मैं 34 साल से मैं रह रहा था, महज 3 घंटे में मुझसे वो घर खाली करा दिया गया. मतलब इमेजिन, यू वेक अप वन मॉर्निंग
and you're just preparing for the daily chores of life, and you know you're Trucks just आ गई planning. और, हाँ. हाँ, you're just planning to, okay, I'll go and I'll take shower and stuff, and इतने में पता चलता है कि बाहर security आ रही है, and you know my mom was on treadmill, she was walking out, and my भांजा भांजीज, my niece nephew, they were off to school and stuff, and पता चल रहा है कि घर खाली करना. So मुझसे तो एक एक करके सब ले लिया गया. I literally started from the scratch. You won't even believe, I didn't even know कि एक नई पार्टी कैसे बनाते हैं. मुझे ये तक नहीं पता था. 3 साल लगे आपको बस. मुझे, हाँ, 3 साल में यहाँ से यहाँ तक वापस पहुँचा हूँ. और मुझे खुशी है इस बात की, मैंने 5 सांसद खोए थे. 0 से हीरो, हाँ, 3 साल में मैंने वापस पाए. Because you were termed as a zero at that stage. बस सब कुछ I खो was चुके थे. written off. हाँ. I'm in a lot of national channels now. I'll not get into naming them, but there used to be debates on those channels where my political obituaries were written. You know that he's finished, and you know now nobody's going to talk about him. And they So said this everything. new avatar that you had, this is totally yours. What you are saying. I would want to believe, yes, but definitely Well, of with course, the your dad, his blessings. blessings of Papa and my mother's strength. Oh, she's been like a pillar. Huh. So yeah, Even her politically, experience. she guides you. Oh totally. yeah, a lot. Okay. She was like the brain behind my papa's politics, Huh. and so is in my case also. Tell me about your relationship with Tejasvi Yadav. थोड़े खट्टे खट्टे भी हैं, मीठे मीठे भी हैं. क्या हुआ था? How did it become bad? Because you knew his mother also very well, and you said she's like your mother. And then फिर उसके बाद there was this unbun. हुआ क्या था? So I mean, yes, I mean, me and Tejasvi again, पुराना रिश्ता रहा है. Our parents were like friends with each other. Papa, Lalu ji, you know, they were friends. साथ दोनों ने मिलके काम किया. So बचपन से, you know, we know each other and stuff. तो वो रिश्ता हमेशा से रहा है. And मैंने हमेशा से ना रिश्तों में मर्यादाएं रखी हैं. मैंने हमेशा से इस बात का ध्यान रखा है कि आज भले दूरी हो या नाराज़गी हो, बट कल अगर हम लोग साथ आएँ या साथ मिलें तो आंखों की शर्म हमेशा बनी रहनी चाहिए. और ये मैंने पापा से ही सीखा. एंड इज़ द रीज़न वाई पापा यूज्ड टू हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अक्रॉस द पार्टी लाइन्स. यू नो, उनके सबसे बड़े से बड़े विरोधी से भी, यू नो, व्हेन पापा यूज्ड टू मीट, यू नो, आई यूज़ टू गेट एट टाइम्स, यू नो, कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो पार्लियामेंट में आप दोनों एक दूसरे के वो थे, अभी गले मिल रहे हो. सो एज अ किड मुझे नहीं समझ में आता था कि वो लड़ाई से वहाँ तक की और या नीतियों को लेकर है, जो पापा ने मुझे बहुत खूबसूरती से बाद में सिखाई और जिसका मैं पालन आज भी करता हूँ. मैं नीतिगत विरोध करूँगा. एंड ऑनेस्टली आई बिलीव आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं. हर लैंग्वेज हम लोग को इतनी लिबर्टी देती है, हर लैंग्वेज में इतने खूबसूरत शब्द हैं कि आप बड़े से बड़ा विरोध भी ना मर्यादित रह के कर सकते हो. यू नीड नॉट नेसेसरली गो द रॉन्ग वे, यू नो, गाली गलौज करना या वो करना नहीं ज़रूरत है. लेकिन 2024 के इलेक्शन में हमने ऐसा ये देखा, वो मर्यादा टूटते हुए देखी, वहीं से चीज़ें गलत हुई. गाली. एंड आई थिंक टॉपिंग द लिस्ट वाज माई फेलो नेपोकेट तेजस्वी. उनकी सभा में जब मेरी माँ, मेरी बहन को गालियाँ दी गई, अब खून खौलता है. आप नहीं बर्दाश्त कर सकते. आप कितना भी आप बोलो ग्रेविटी है, सेल्फ कंट्रोल है, बट कोई आपकी माँ बहन को गाली देता है ना, वो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते. उसके बावजूद भी मैंने बहुत मर्यादित होकर मैंने उसका जवाब दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. बट मेरे और तेजस्वी के बीच में रिश्तों में दूरी तब आई जब रिएक्शन में ही स्टार्टेड कवरिंग अप ओवर द होल इशू, यू नो, कि अरे ऐसा नहीं था, मैंने सुना नहीं, मैं दूर खड़ा था एंड ऑल दैट सेट. ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ये गलत है, बात ख़त्म. इससे ज़्यादा कोई जवाब हो ही नहीं सकता. जैसा आपने कहा राबड़ी जी के लिए, राबड़ी जी इज़ नॉट लाइक माई मदर, शी इज़ माई मदर, पीरियड. मेरे सामने कोई भले में उनके कितने भी विपक्ष के दल में क्यों ना हूँ, विरोध में क्यों ना हूँ, बट अगर कोई मेरे सामने राबड़ी जी को गाली देगा, मीसा दी को गाली देगा, किसी को, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा. मैं उसी वक्त में ऑब्जेक्ट करूँगा, मैं रिएक्ट करूँगा जैसे मुझे रिएक्ट करना हो. बट आपके सामने कोई मेरे परिवार को गाली देता रहा, आप खामोश रहे, ये गलत था. एंड वहाँ से यू नो थोड़े डिफरेंसेस आए. बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, पुरानी जान पहचान है. अभी परसों वी वर फ्लाइंग टुगेदर ओनली एंड ही स्टिल नो वेल, ही वाज ऑन व्हील चेयर. तो मैं उनका हालचाल पूछने गया था. सो ठीक है. डू यू गो बियॉन्ड इट? मतलब ऐसे होता है कि यू गो बियॉन्ड दीज फाइट्स व्हिच हैपन ड्यूरिंग द इलेक्शंस? ऐसे होता है बियॉन्ड इन द सेंस, मतलब कि आगे जाके यू ट्राई टू रिपेयर द रिलेशनशिप. ऐसे होता है, नहीं होता? पता नहीं. आई थिंक कुछ दरारें ऐसे पड़ जाती हैं, कुछ ऐसी हो जाती हैं. लोग कहते हैं कि समय हर चीज़ को भर देता है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं, अभी भी हैं मेरे दिमाग में,
मेरी मदर के बारे में मेरे परिवार के लोगों ने जब पार्टी टूटी थी बहुत कुछ कहा था, वो मैं चाह के अपने जहन से मैं नहीं निकाल सकता। और वो बहुत बड़ा कारण है कि कभी जो दोनों फ्रैक्शंस को बोलते हैं कि कभी एक साथ आ जाए, नहीं आ सकते, बिकॉज मैं उन बातों को ओवरलुक नहीं कर सकता हूँ। What do you think went wrong with तेजस्वी? इतनी सारी 200 कुछ रैलीज की थी उन्होंने. What went wrong with him? Why was it that he could not replicate the magic? I mean, that he did in the assembly elections. लेकिन इस बार कुछ हुआ नहीं. Was it just because wheelchair में थे वो second half में? No, so even you need to understand the assembly elections also. In assembly elections, I was contesting alone, जिसका लाभ इनको मिला। अगर एनडीए जैसे हम लोग लोकसभा में लड़े हैं, had the whole NDA been united even during 2020 assembly elections, results would have been totally different. I don't think he would have managed to got more than 20-25 watt seats maximum. उस वक्त नीतीश जी उनके साइड में थे. नहीं, so that time in 2020 Nitish ji and Bharatiya Janata Party They was were together. together. Sorry. And Lalu ji and Congress, they were together, and I was contesting alone in between. So मुझे जो वोट मिले वो NDA alliance के ही वोट थे. All my supporters. Later Nitish ji went with him and then the whole thing yes. happened. That was he's jumped so many times that I'm forgetting the sequence, but so, yeah, he did very well though, in spite of that, maybe because it was fragmented, जैसे आप कह रहे हैं. It was fragmented. So अगर आप United NDA का वोट उस वक्त भी अगर आप देखें, so I don't think he would have been able to get more than 20-25 watt seats maximum. So I mean, if he got those number of seats in 2020 elections only because the NDA was fragmented that time. उस वक्त लालू जी जेल में थे. अब लालू जी was out this time. In 2024 he's out, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक एनडीए की सरकार गिर जाएगी. Is it just Tejasvi now or is it Lalu ji calling the shots? I don't know who's calling the shots there, but then they need to understand that enough of this caste politics now. You know, it has got them to a saturation point. You know, their MY Samikaran, they have done so much. UP was all about caste politics. No, so UP was all about caste politics, but then Akhilesh ji has given that liberty for other castes also to come and join with him. But then here they are so strict with their MY Samikaran is that other castes, they don't really go with them. तो MY को छोड़ के जो बाकी castes हैं, are they seeing NDA as an option? But there's also Prashant Kishore. Well, I don't know, because Prashant ji is not yet into the electoral politics. We have not seen him contesting elections. तो फिर options क्या हैं अगर कोई लालू जी की पार्टी को नहीं वोट करना चाहता है, या yes, definitely उनके alliance अगर बनते हैं, which is with Congress and so this is what I'm saying. So the option is and the only option is NDA, and this is what we have seen in Lok Sabha elections results. You know, I mean, we have managed to get 30 seats out of 40, and even the seats that we have lost, we know the reason why. We lost Upendra Kushwaha ji's seat because Pawan Singh contested separately. You know, so it was because of our mistake only. I'll call this a mistake. You know, we could have managed it well. You know, we lost Arawali seat because there was another person, you know, who was contesting independently. So we lost couple of these seats because of our mistake only. We could have rectified those mistakes. You know, you were talking about कि ये जो wrong narrative था कि जाति को लेकर या फिर constitution को लेकर reservation हटा देंगे, संविधान बदल देंगे. The other thing was about Agniveer. That was also one of the things that happened where there was anger against that. कुछ ये जो 3 इश्यूज हैं, ये कुछ राज्यों में इफेक्ट कर गई, कुछ में नहीं इफेक्ट कर गई. लाइक यूपी में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इन बिहार इट वाज नॉट ऑल दैट, वो क्लिक नहीं किया इतना. राजस्थान में हुआ लेकिन हिमाचल में नहीं हुआ, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. या उत्तरांचल में होना चाहिए था, राइट, बिकॉज सो मेनी पीपल गो इनटू द अग्निपथ स्कीम और द अग्निवीर स्कीम. फ्रॉम बिहार ऑल्सो सो मेनी यूथ गो इनटू इट. What is your view about the Agnipath scheme? क्योंकि नीतीश जी कहते हैं कि it should be looked into again. आपके क्या विचार हैं? क्योंकि you also represent youth. So honestly speaking, I mean, I didn't see any kind of aggression against Agniveer scheme during the elections. मतलब this wasn't my experience at all. पर जब लागू हुआ था उस वक्त स्टेशन चलाए थे वगैरह, Definitely उस वक्त था, उस वक्त मेजर था और बहुत ज़्यादा था.
and even we were not very sure that time that how it gonna shape up. But then during elections in Bihar, at least I didn't see any You didn't anger see. or any aggression against this particular scheme. Definitely, reservation and Samvidhan was an issue even in our state also. But I think we managed to counter it well in our state. The states where we lost, I don't think we could manage to counter it that क्योंकि well. द कांग्रेस इज सेइंग कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो इस स्कीम को रद्द कर देंगे, और बिहार से बहुत सारे युवा जो हैं वो इस स्कीम में जाते हैं, तो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस. लोग आके आपसे पूछेंगे ज़रूर, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स दैट द पार्टी कैन, दैट द गवर्नमेंट कैन ट्वीक इट, चेंजेस आ सकती हैं, या फिर कांग्रेस जब बोलती है तो सरकार में आएंगे तब ना. आई मीन ये तो अभी बहुत दूर की बात है. आई डोंट सी अनदर 10-15 ईयर्स, तो आई डोंट सी कि केंद्र से एनडीए की सरकार कहीं जाने वाली है. बट यस, कांग्रेस की अपनी सोच हो सकती है. डेफिनेटली इवन विद इन एनडीए ऑल्सो few parties have their concerns concerning this particular scheme, and they want to revisit it. They have some suggestions and some clarifications they need. So I think NDA is open to discuss that. We are even open to discuss it with the opposition also. Opposition need to play a positive role. I mean, if they have some suggestions, if they have some concerns, come sit and discuss with us. Even that day in Parliament, the way LOP was behaving, when the Prime Minister was talking, I mean, you need to listen to him. Now, if you have some concerns, you can always ask him questions. You can always counter him then and there. But then just by sending people in the well, and then throughout the debate, they kept talking about need. And then during Prime Minister's speech, all of a sudden they remembered Manipur. I mean, if Manipur was so much of your concern, you should have asked your member of parliament from Manipur to speak immediately after the LOP. But now they themselves are not very clear that they need to talk about Agniveer, or they need to talk about NEET, or they need to highlight Manipur. So they themselves are confused. But then government's got nothing to hide. I can say this very clearly on behalf of the government. We've got nothing to hide, and we are more than open. Come, sit, talk. But then it needs to be a positive, a healthy discussion. See, the opposition says that the BJP doesn't know how to deal with allies. They are not sensitive to allies. और वो हरसिमरत जी की तरफ पॉइंट करते हैं और कहते हैं देखिए उन्होंने कैसे ट्रीट किया अकालीस को. अब यू आर पार्ट ऑफ द एनडीए, सो इज़ नीतीश बाबू, सो इज़ चंद्रबाबू नायडू. तो जब आप लोग मिलते हैं, एनडीए में मिलते हैं, क्या आपको वही इज्जत दी जाती है जैसे बीजेपी के जो इलेक्टेड एमपीज हैं उन्हें दी जाती है? Of course, rather I think a little more than that, because वो तो because you're Hanuman, that's why. No, not because of that. Even as all the allies, I think I can say this on behalf of all the allies. BJP has always given us that comfort level and has given us that platform, where we can speak our heart out. We can come out with our concerns. We can come out with our questions, with our suggestions. And Prime Minister himself has done this repeatedly in all the NDA meetings. He has given us that space to talk openly about any issue. And yes, I mean, the kind of respect that we get from the Prime Minister, the kind of love that I get from the Prime Minister, I think the world has seen that. He's seen. World has seen him hugging me, the way, he's spoken about me during the campaign in Hajipur, when he came there. I think for 5 minutes he kept speaking about me. For me, it was a big thing. So I think what more can we ask for? Okay, tell me about that part of your life when you went to Bombay to become my part of the film industry. I have to ask you Disaster. that. I have to ask you that because there's that one picture when you met with Kangana and you just turned and looked and then she turned and oh my god, that picture went viral after that. And उसके बाद सारे cameramen wait कर रहे हैं कि आप आओगे and then we'll have Kangana and then there'll be that picture that comes in. So tell me about that picture and about your time in the film industry. Well, it was a different time. I don't know, difficult, easy, I don't know what, but it was a different time. See, I mean, no one from my family has ever been to Bollywood, मतलब in a filmy way I can say कि मेरी 7 पुश्तों ने कभी फिल्मों से उनका कोई नाता नहीं रहा. So ऐसे में I was the first generation who was trying to venture into it, and very soon I realized that this is a disaster. Before even the country realized it, I realized it that I'm doing a disaster, because
because that's where I came to know that I'm just not made for this. And then again, the same nepo kid thingy comes. Now, I have seen my father giving speeches, standing on the stage and talking impromptu, and here they are giving me these dialogues that's written. और वही बोलना है. और वही बोलना है. And you know, they used to given me these, they used to give me these 2-line का dialogue to speak, and I used to speak for 2 pages, and they were like, ये नहीं बोलना था इतना ही. अब मैंने पापा को देखा ही ऐसे बोलते हुए, पार्लियामेंट में इम्प्रॉम्प्टू बोल रहे हैं, मंच पे इम्प्रॉम्प्टू बोल रहे हैं, तो मुझे लगता था इम्प्रोवाइज करके आप भी बोल सकते हो. सो आई यूज्ड टू डू दैट, बट देन वेरी सून आई केम टू नो कि पुटिंग ऑन दिस मेकअप एंड रट्टो मारोइंग दीज लाइन्स एंड स्टफ, ये नहीं हो सकता है. सो पर अभी पॉलिटिक्स में वही कहते हो जो मन में आता है, या जो कहने को कहा जाता है? ना जो मन में आता है. एंड आपने हमेशा देखा होगा, आई नेवर रीड स्पीचेस इवन इन पार्लियामेंट या स्टेज पे, कभी भी नहीं. मैंने आज तक कभी पढ़ के बोला ही नहीं है. सो जो मन में आता है और उसी वक्त जो आता है, मैं तो रिहर्स करके भी नहीं जाता, सोच के भी नहीं जाता दिमाग में कि ये लाइनें बोलनी है या ये बोलना है. तो जो आता है. बट देन यस, सो वहाँ से और कुछ हो ना हो, एक अच्छी दोस्ती कंगना के साथ ज़रूर हो गई. सो आई थिंक दैट्स वन गुड थिंग जो हम लोगों ने कैरी की वहाँ से. But I was really looking forward to meet her in the parliament, because past 2-3 years I was so busy in my life कि वो connect टूट गया था. पर वो she has not made her maiden speech, अभी तक तो बोली नहीं है. Yeah. बाहर आके कह रही थी. She was giving comments, but you're giving her tips on. No, she doesn't need any tip. Okay. I'm going to go into this segment that we have, which my team has put together. Give me a snap reaction when you see them. Asaduddin Owaisi, what is your impression? You've seen him in parliament so many times. I mean, yes, right, wrong, debatable, but I think he comes across as a very strong personality. Okay, next one. अवधेश प्रसाद, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? अयोध्या. आई थिंक इवन LOP ने इतनी बार बोल दिया, इनको खुद को लगता होगा कि अयोध्या के ही सांसद हैं, जबकि हकीकत में फैजाबाद के सांसद हैं. अयोध्या तो एक विधानसभा है, बट LOP ने इतनी बार बोल दिया अयोध्या से सांसद, अयोध्या से सांसद. सो या, बट आई थिंक बिल्कुल सामने बैठे हैं. ही इज गॉट प्राइड ऑफ प्लेस. और हर कैमरा फ्रेम में वो आएंगे, क्योंकि जैसे ही LOP पे जाएगा तो he'll always be there. He'll always be there. But I think well done. I mean he deserves. अच्छा किया इन्होंने. नसीब लिख के आए हैं अपना. हाँ. Okay. Mamata Banerjee? My God, difficult to deal. Have you met her? I have met her, but yeah, very formally, in very formal get-togethers, never one-to-one. Okay. Though with my father, they had good relationships. हाँ. Yeah. Okay. Kanhaiya Kumar, what is your view about him? Well, he speaks very well, but then कथनी करनी में बहुत फर्क है. हाँ, 2 इलेक्शन हार चुके हैं. या, एक तो बिहार में ही लड़े थे, और इस बार इनको गिरिराज जी. हाँ, गिरिराज जी बेगूसराय से. और इस बार बिहार में एक्चुअली क्या है ना, यंग जनरेशन में बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, तो वो दूसरे यंगस्टर्स को आने नहीं देते. तभी मुझे खुशी होती है, मुझे प्राउड होता है जब मैं बोलता हूँ कि युवाओं को मैंने लड़ाया. बिकॉज बाकी युवा ऐसे हैं बिहार में या देश में भी, जो अपने कंटेम्प्रेरीज से डर जाते हैं कि भाई ये मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलता है, ये ज़्यादा लाइमलाइट ले लेगा, ये मुझसे आगे निकल जाएगा. तो इसलिए शायद इस बार इनको बिहार से लड़ने का मौका नहीं मिला. क्यों? आई मीन, इज इट लाइक क्रांतिकारी पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं है बिहार में? जगह बहुत है, बट लोगों को अपनी जगह की डर हो जाती है, इसलिए वो दूसरों को स्पेस देने से कतराते हैं. हाँ, ओके. Kangana, of course. spoken about good friend. Do you think she did the right thing getting into politics? She's won, yes, but do you think she can make a difference? Well, one thing I know for sure that most of the time she's not very politically correct, but that's her USP again. That's her USP. हाँ. She talks her, मतलब she knows क्या बोलना है, कब बोलना है. अब वो politically correct हो नहीं हो, वो debatable हो सकता है, but कहाँ? What she thinks she says. But that's her. That's her USP. I think we all like her for this. Okay. King. That's right. Yeah. Okay. Yeah, that's the reaction that most have. Ravi Kishan? He's family, his brother, bhai. And I think he's done very well. He's doing very well. Politics में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निरंतरता निभा पाते हैं. So I think he's been very, very consistent. Films as well as politics. Yeah. It's a difficult combination. What do you think about Shatrughan Sinha? How do you think he managed film and politics? I think बहुत अच्छी तरीके से. And like a true politician, he navigated also himself.
कि नहीं तो जो लोग मूवी से आते हैं वो नहीं समझ पाते राजनीति को, और एक ने धोखा दे दिया तो फिर वहीं पे साइड हो जाते हैं। बट उन्होंने अपने रास्ते, अपने विकल्प चुन लिए। टीएमसी से हैं आज की तारीख में। हाँ, बट इवन इन व्हेन ही वाज इन बिहार पॉलिटिक्स, बिहार पॉलिटिक्स तो छोड़ चुके हैं वो, बट बिहार में भी इवन इफ ही कम्स बैक नाउ टू बिहार, he'll still manage the crowds and yeah. He is the true Bihari Babu. है ना? And I have huge respect for him. मतलब he's like my father, And पापा और इनकी दोस्ती तो खैर थी ही, बट पापा के जाने के बाद जब मेरे साथ नहीं थे, he stood by me and my family. So he's father to me. Okay. तेज प्रताप यादव? भाई, brother. ये रिश्ता इस परिवार से है। But have you seen the new ones? वो yes. With the Shivling and he's big Shiv Bhakt. No, he himself is very आस्तिक and पूजा पाठ काफी करते हैं। हाँ, और मतलब पॉलिटिक्स एक जगह, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस दूसरी, है ना? He has quite ठीक है, इन्होंने दोनों भूमिका को उतना ही स्ट्रॉन्ग रखा है, so which is nice, I think good. Okay. लालू प्रसाद यादव? Oh, he's मतलब क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, he's someone who is against all odds. खड़े होना ये आसान बात नहीं है। मतलब फिर वही है कि इनकी राजनीति से कई लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, बट जिन परिस्थितियों से, और मैं इनको देखता हूँ, पापा को देखता हूँ, मैं यही सारी बातें बोलता हूँ, कहाँ से आए हैं। आज हम लोग इनको देख के डिबेट कर रहे हैं, ये सही किया, ये गलत किया, बट जहाँ से ये आए हैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में का जो संघर्ष है वो आसान नहीं है। मैं अपने फादर की भी बात करूं, वो 2-2 नदी पार करके जाते थे बस्ता सर के ऊपर रखकर स्कूल पढ़ाई करने के लिए। ये ज़िद, ये जज्बा होना, और उन परिस्थितियों से, मतलब जो गांव चारों दिशा में किसी रोड से जुड़ा हुआ नहीं था, वहां से निकलकर राष्ट्र की राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचना, बिहार में 15-15 साल तक इनका मुख्यमंत्री रहना, ये साधारण बात नहीं है। सो यस, अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। अगेन विद द स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यू कैन डिबेट, but lot to learn from him. Okay. Rahul Gandhi? Lot to learn from him too. What not to do. Really? On what not to do? What can that be? So yes, I mean, even what the recent what do you think one he's done also. wrong? क्या? I think his choice of decisions, I think, एक तो I think unlike सोनिया जी में ना हमेशा वो था लोगों से मिलना, लोगों, अब जैसे पापा गठबंधन से अलग होते ही नहीं अगर वो मुलाकात हो गई होती राहुल जी से, सो लोगों से मिलना, ईजली अवेलेबल रहना, सही मुद्दों को उठाना, उसके साथ जुड़े रहना। लाइक अभी भी एज एन एलओपी जब इनकी स्पीच थी, आई मीन, आप जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, अब मैं शिव भक्त हूँ, आप शिव की तस्वीर को लहरा रहे हैं, उसको आप टेबल पे रख देते हैं, उसके ऊपर कागज़ पत्री रख देते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, आप अलग अलग धर्म गुरुओं, अलग अलग धर्म के बारे में आप बात करने लगते हैं, जहाँ पे अगले दिन सारे धर्म गुरुओं ने आके खुद ही आपसे असहमति अपनी अभय मुद्रा के बारे में। सो आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर नीडेड। मतलब आप क्यों विषय से भटक रहे हैं, क्यों इन चीज़ों को लाना जिसकी वजह से बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हो। तथ्यात्मक, अग्निवीर का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, तथ्यात्मक कितनी गलत जानकारियां दी कि उनको कंपनसेशन नहीं मिलता। उसी वक्त राजनाथ जी ने भी खड़े होकर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने भी उस वक्त टोका था, बाद में अग्निवीर की तरफ से भी, अधिकारियों की भी तरफ से उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया। सो तथ्यात्मक गलत जानकारियाँ देना, व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा हूँ। मतलब पीएम किसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे हैं, ऑनरेबल चेयर किसके तरफ कितना झुक रही है, नहीं झुक रही है, ये सारी टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। सो अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना ज़रूरी है, जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन्होंने लिया है। आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आपने संघर्ष की जीवन के बारे में कहा कि लालू जी हों या आपके फादर हों, दे ऑल केम फ्रॉम दैट कॉन्फ्लिक्ट, दैट जो सोशलिज्म से उठे थे, जेपी मूवमेंट से उठे थे, लालू जी, मुलायम जी, ऑल दीज पीपल वर फ्रॉम दैट सोशलिस्ट मूवमेंट, लेकिन उससे दे मूव्ड अवे। इफ यू सी राहुल गांधीज ट्रैजेक्टरी, ही वाज एस्टैब्लिशमेंट चाइल्ड, राइट, एंड नाउ ही सीन एज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट पर्सन, जो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो रीमॉडल तो कर लिया ना उन्होंने। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रीइन्वेंटिंग और रीमॉडलिंग योरसेल्फ, आप प्लीज करें, बट आप अपनी एक विचारधारा तो आप रखें ना। यू कांट जस्ट बी गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स।
आप एकदम से कभी आप राइटिस्ट हो जाएंगे, आप एकदम से कभी आप लेफ्टिस्ट हो जाएंगे, आप दर्शन करने जाएंगे तो आप मानसरोवर की पूरी यात्रा आप कराएंगे, अलग अलग धाम आप घुमाएंगे, और जब आप लेफ्ट विंग होते हैं तो आप एकदम से जब आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होके चलते हैं तो उसमें आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी वो नहीं सामने आती है. अभी तक इसलिए समझ में ही नहीं आता कि आप क्या शिव की तस्वीर लहराने वालों में से हैं या आप जनेऊधारी हैं, नहीं समझ में आती हैं बातें. Talking about reinventing himself, Prashant Kishore, another Bihari who wants to change Bihar. मेहनत कर रहे हैं एंड लंबी यात्रा पे निकले हुए हैं. बट देन फिर वही, आई थिंक व्हेन यू इन पॉलिटिक्स सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू यू नो to the numbers. This is what I have learned for the past 3 years. कि everything revolves around the numbers that you have in assembly or in parliament. अभी वोटर्स टेस्ट करना बाकी है. आई डोंट नो वेयर ही स्टैंड्स. Because they're saying that, I mean, the opposition says that Prashant Kishore जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है. ये तो खैर ऑपोजिशन के लिए सबसे आसान है किसी के भी बारे में कहना. वो लेटर मैंने भी पढ़ा था जिसका जिक्र आप कर रही हैं. ये बहुत आसान है ऑपोजिशन के लिए, किसी को भी बी टीम, किसी को भी ए टीम, किसी को भी सी टीम. मैं खुद कितनी बार बीजेपी की बी टीम रहा हूँ और फलाना ढिमकाना. बट देन हर कोई अपनी स्पेस कार्व आउट करता है. वो आपकी मेहनत पे है और लोगों के विश्वास पे है कि आप कितनी स्पेस कार्व आउट कर सकते हैं. ही इज़ ट्राइंग हार्ड. प्रशांत जी अच्छी मेहनत कर रहे हैं. अब इवेंचुअली लोग कितना विश्वास करते हैं वो तो जब चुनाव लड़ेंगे तो पता चलेगा. You know, Chirag ji, before I conclude, I have to ask you this, which I ask most of my guests. What do you do to keep your mental and physical well-being? आप कह रहे हैं आप spiritual हैं, आध्यात्मिक हैं. So tell me how you cope with the stresses. How did you cope with that period at that time when you were, you felt alone, let down by family, friends, everybody, media included, जिन्होंने आपको write off किया था. So that is a very difficult mental space. उससे बाहर निकलना, what helped you physically and mentally? I doesn't allow anything to take over me absolutely, because जीवन सिर्फ एक चीज़ के होने या ना होने से नहीं है ना. इट्स कलेक्टिव. हर चीज़ रिस्पॉन्सिबल है आपके जीवन में खुशी या दुख को लाने के लिए. मैं किसी एक चीज़ को हावी ही नहीं होने देता हूँ. अगर मैं प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर रहा, आई थैंक गॉड फॉर द फैक्ट दैट मेरी पर्सनल ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है. आई एम सो हैप्पी विद माई मदर, विद माई सिस्टर, माई नीस, माई नेफ्यू, माई ब्रदर इन लॉ. आई हैव गॉट अ ब्यूटिफुल फैमिली टू लुक फॉरवर्ड टू. मैं वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा करता हूँ. अगर मुझे 8 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे या 16 घंटे मुझे काम करना है तो वो मैं काम करूँगा. उसके बाद मैं फैमिली को भी समय दूंगा. मैं पूजा पाठ करके अपने आप को भी समय दूंगा. मेडिटेट ज़रूर करता हूँ मैं. पहले तो बीच में तो जब बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी रोज़ ही करता था, बट अभी भी हफ्ते में 2-3 बार मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ. वो भी बहुत आपको काम कंपोज रखता है. वो पूजा भी करता हूँ, फैमिली को समय देता हूँ, अपने आप को अनवाइंड करने के लिए OTT सीरीज़ भी देखता हूँ. नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच भी करूँगा, भले जितना समय मिले बट मैं करूँगा. आई ट्राई टू स्प्रेड माई सेल्फ इक्वली एवरीवेयर, ताकि कोई एक जगह की नेगेटिविटी मुझे पूरी तरीके से कंज्यूम ना कर ले. तो व्हाट इज द OTT दैट यू हैव बीन वाचिंग? क्या मैंने अभी रिसेंटली ब्रिजिंगटन खत्म किया है. उसकी डोंट टेल मी मिर्जापुर नहीं देखा आपने? मैंने मिर्जापुर अभी नहीं देखा. बट फिर वही है ना, मैं इन सब चीजों से निकलना चाहता हूँ. ये तो मेरे आसपास चल ही रहा होता है. आई लाइक वॉचिंग दोस सीरीज. हैव यू सीन महारानी? That's set. Yes, महारानी का मैंने सारे सीजन नहीं देखे. शुरू का ही सीजन देखा था, फर्स्ट सीजन मैंने देखा, उसके बाद नहीं देख पाया. Okay, so you don't want to see something जो आपके ये वो चीज़ है ना. अब जैसे पंचायत हो गया, महारानी हो गया, ये सब वो है जो मैं आसपास देख ही रहा हूँ. So I wanted something एकदम हट के जो मुझे दूसरी दुनिया में लेके मतलब एक स्पेक्टिकल नहीं होना चाहिए which you are used to. Comfort zone में नहीं आना चाहिए. Which you like. Okay, tell me about your cuisine. Tell me about Bihari cuisine. What do you like about your own cuisine? उसको क्या popularize करना चाहते हो आप? मैं बिल्कुल भी I'm not a foodie, which is a good thing. I'm not a foodie. एंड इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा cuisines या बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ों का शौक नहीं है. मतलब you're not चंपारण मटन आप घर में नहीं बनाते जैसे लालू जी? नहीं बनाते. हाँ. और तो हमको वो वीडियो नहीं मिलने वाला कि आप कड़छी चला रहे हैं. आई एम वेरी बैड एट कुकिंग. पापा वॉज वेरी गुड. पापा इतना अच्छा चिकन मटन बनाते थे. मैं बहुत बुरा हूँ बनाने में भी, खाने में भी. माई मदर लव्स, उनको खिलाने का बहुत शौक है, बट मैं खाता ही नहीं तो वो भी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है इन सब चीज़ों को लेकर. मेरे लिए ऑल टाइम दिन में 24 घंटे, अभी भी आने से पहले मैं राहर की दाल, चावल, अचार,
यही खाकर आया हूँ। और ये आप मुझे दिन में तीनों समय दे सकते हैं, साल के हर एक दिन। तो it's not लिट्टी चोखा? नो, लिट्टी चोखा डेफिनेटली, बट हाँ वो फिर कभी कभी, मतलब मैं फिर रोज नहीं कि मतलब हाँ, बट कभी कभी जरूर। But you haven't grown up with just Bihari food, है ना? Your mother पंजाबी is भी, Punjabi. यस, माय मदर्स पंजाबी, हाँ. तो थोड़ा टच ऑफ पंजाबी हमेशा से रहा है, तो बटर चिकन विकन भी आ जाता है बीच तो में। Sundays राजमा चावल. राजमा चावल भी आ जाते हैं। Okay. On that Yeah. note, thank you so much, Chirag, Thank for being you. part of this podcast. Thank you. And wishing you all the best. Thank you so much. Thanks. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.